Hello students, welcome to all of you. I hope you are safe at your home. Good morning to all of you. In today's class 9th, we studied chapter 2, Is Matter Around Us Pure? In the previous videos, we have studied about the pure substance, impure substance, mixtures, types of mixtures, metals and non-metals, and in the last class I teached you about the solubility. In the solubility, the next part is concentration of the solution. Concentration of the solution, in the concentration of the solution I teached you mass percentage. We find the concentration of the solution by the two methods. Number first, mass percentage. Number second, volume percentage. In the previous class, we learned about the mass percentage, how we can calculate the mass percentage in a solution. Mass of solute, what is the percentage of the mass of the solute in a solution? We teach into the last video. Okay students, in this video we will learn about the volume percentage. Let's start with the class. Okay students, now volume percentage, concentration of the solution. In the concentration of the solution we learn about the volume percentage. What it mean by the volume percentage? Volume percentage means the number of parts of the volume of the solute dissolved in 100 parts by volume of the solution. The number of parts of the volume of the solute dissolved in 100% 100 parts of the solution. Okay students, now what are the example of this volume percentage? What are the example of this? Okay students, let's see. 5% by volume, 5% by volume of a solution ethanol in water. It means that 5 ml of ethanol is present in 100 ml of water. Okay student, 5% by volume of solution of ethanol in water. It means that 5 ml of ethanol is present in 100 ml of water. Okay student, now what is the formula of volume percentage? Volume percentage is equal to volume of solute upon volume of solution into 100. Okay students, this formula is just same of the mass percentage, but only difference is that there is a mass of solute and here is volume of solution. Clear all of you? Okay, the second formula of the volume percentage becomes when we break to the volume of solution into volume of solute and volume of solution में volume of solute, volume percentage is equal to volume percentage is equal to volume of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ओके स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज. ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जब आपको क्वेश्चन गिवन आएगा सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करिए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100. बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड टू द वॉल्यूम परसेंटेज. ओके स्टूडेंट,
ठीक है, नोट कर लीजिए बेटे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको जो है 100 ml ऑफ वाटर में जो है आपका सॉल्यूट आता है। सॉल्यूट अगर आपको क्या नाम है लीटर में नहीं दिया है तो वो कन्वर्ट करना होता है। चलिए क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा। तो बेटा ये टॉपिक है आपका, आप सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ से, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सभी बच्चे नोट करिए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों? वॉल्यूम परसेंटेज। एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ए सॉल्यूशन कंटेन 10 ml ऑफ एथेनॉल, 10 ml ऑफ एथेनॉल डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं 10 ml ऑफ एथेनॉल, 10 ml आपकी जो ये वैल्यू कम है, तो ये बच्चों ये क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। एंड ये आपकी 200 ml ऑफ वाटर, ये क्या है बच्चों? यहाँ पर आपको अमाउंट ज्यादा दिया गया है, ये है आपका सॉल्वेंट। कैलकुलेट, आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों वी नो दैट वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, अभी आपको बताया था बेटा, याद करिए। वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप सभी को, सभी स्टूडेंट्स को यहां पर जो वैल्यूज गिवन है वो आपको लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है बेटा आपका? इथेनॉल। तो हम यहां लिखेंगे इथेनॉल, इथेनॉल आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 10 ml। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपको क्या गिवन है बच्चों? वाटर, ठीक है। तो यहां से आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज इक्वल टू 200 ml। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाउ वी कैन फाइंड दिस? when we add to the volume of solute and volume of solvent, we can get to the volume of solution. Now total volume of the solution is equal to volume of solute plus volume of solvent. Clear all of you? तो बच्चों आप यहां से देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 10 ml, 10 ml प्लस में 200 ml, तो बच्चों आपका कितना हो गया? 210 ml। क्लियर ऑल ऑफ यू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 210 ml, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहां से वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला पहले लिख लेना है, वी नो दैट आपका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चों आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से वॉल्यूम ऑफ, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है बच्चों? 10 ml, 10 अपॉन में कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना फाइंड किया? 210 इनटू कितना आ गया बच्चों? 100। तो आप यहां से देख रहे हैं बेटा, इसे सॉल्यूशन करेंगे यहां से 100 अपॉन में 21। तो बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज आपका कितना आ गया? वॉल्यूम परसेंटेज, सभी बच्चे फाइंड करिए बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है बताइए, फाइंड करिए। जब 21 से हम 100 को 5 के डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों? 4.76। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बच्चों इसे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द एथेनॉल, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द एथेनॉल इन 200 ml ऑफ वाटर इज 4.76%। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे हेंस वॉल्यूम परसेंट of ethanol in 200 ml of water will be, कितनी होगी बच्चों? कितना फाइंड किया आपने? 4.76, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो भाई आपका जो परसेंट आपको निकालना आ गया होगा, मैंने आपको
मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के आपको ये क्वेश्चन कराए बच्चों। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो ये कुछ एग्जांपल और डिफरेंट आपको गिवन होंगे, बस आपकी ये वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ 10 ml है, यहाँ पर आपको 200 ml दिया है, ठीक है बच्चों, तो वहां पर वो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, 30 ml भी हो सकता है, यहाँ आपको 500 ml हो सकता है। तो बेटा आपको बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और आपको इसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे थे, सबसे पहले आपने गिवन डेट लिखा, गिवन में आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद आपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करी और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट आपके पास आ गया। सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटे इसे। देखिए बच्चों यहां पर आपको नेक्स्ट हम बता रहे हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों अभी आपने देखा मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, अब हम सीखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसमें मास और वॉल्यूम दोनों गिवन होगा और जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों गिवन हो उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आपको मैंने फॉर्मूला यहां पर दिखाया है, आप देख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा इन वैल्यूज का आप ध्यान रखेंगे, इन ग्राम और इन लीटर इनटू 100। तो बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आपके पास में क्या है 1 लीटर आपके पास में कोई भी सॉल्वेंट है, जैसे वाटर मान लेते हैं, 1 लीटर आपके पास पानी है, अब आप उसके अंदर कितना आप सॉल्यूट डालो, जैसे माना कि आप चीनी डाल रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आपने चीनी डाली 5 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम, जो भी है आपने जितना भी डाला, तो बेटा उसी से आप निकाल रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो आपकी कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा मात्रा में है वो है सॉल्वेंट। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना हम सॉल्यूट डालेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में लेना है हमेशा मास, और आपको वॉल्यूम लेना है हमेशा लीटर में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। तो ये आपका निकलेगा यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। तो आपके पास में क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो बच्चों 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको क्या गिवन है, सॉल्यूट, क्या गिवन है, सॉल्यूट। तो बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों 5 ग्राम, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, लिखा है ना बेटा, लीटर में है तो वॉल्यूम होगा बेटा, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना गिवन है बच्चों 250 ml। तो बच्चों आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का ये है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट आपका ग्राम में होना चाहिए, यस बच्चों ग्राम में है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में होना चाहिए, बट ये आपको मिलीलीटर में गिवन है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों क्या करना होगा इसमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 250 अपॉन में 1000 लीटर हो जाएगा बच्चों ये आपका, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं, आप से एक जीरो काट देंगे तो ये आपका आ गया बच्चों 25 अपॉन में 100 लीटर, ये आपका हो गया। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया। अब आप सीधा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला फाइंड करिए, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, इन ग्राम और लीटर, तभी आपका ये स्ट्रेंथ निकलेगा यहां से। तो आप यहां से देख रहे हैं आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों 5 ग्राम, 5 अपॉन में आप क्या देख रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 25 अपॉन में 100 लीटर, ठीक है बच्चों, हाँ है ना। तो अभी आप इसको सॉल्व करिए इसे, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 × 100 अपॉन में कितना आ गया 25, ठीक है। अब 5 से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 5 5 जा 25
और 5 से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपका कितना आ गया 20, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 20, तो आपकी यूनिट क्या आएगी ग्राम पर लीटर, दिखाई दे रहा है बेटा, ग्राम पर लीटर। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20 ग्राम पर लीटर, यानी आपका जो ग्लूकोज है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 ग्राम पर लीटर है। कितनी है बच्चों 20 ग्राम पर लीटर। सभी बच्चों को समझ में आया बच्चों, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए यहां से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा हम यहाँ पर, अब हम आपको बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे यहां से, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इसे ले लीजिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना है आपके पास बेटा दो चीजें हैं, एक है आपका सॉल्यूट, एक है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट आपका कम हो, सॉल्वेंट आपका ज्यादा हो, तो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। सभी को समझ में आ गया बेटा, बहुत इजी है। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन सॉल्यूट इज लेस, ठीक है, सॉल्यूट इज लेस एंड सॉल्वेंट इज लार्ज, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। सभी बच्चों क्लियर हो गया बेटा, हाँ या ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या करना है बच्चों, फिर वही दोनों चीजें ले ली है, सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा दे दिया आपको सॉल्वेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां पर देख रहे हैं इन ए सॉल्यूशन आपको एक किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट आपका कम हो जाए, ये आपका लार्ज हो जाए बच्चों, ठीक है, और ये आपका लेस हो जाए, तो आप यहां से क्या देखेंगे, ये आपका कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसे नोट करिए बेटा, सभी स्टूडेंट्स इसे नोट करें। नोट कर लीजिए बेटा सभी इसे, ठीक है। यहां पर आज आपने सीखा, इसमें मैंने भी आपको बताया स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो सॉल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका लेस है, ठीक है, सॉल्वेंट आपका लार्ज है, इस तरह के सॉल्यूशन को आप बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट आपका लार्ज है और सॉल्वेंट आपका लेस है, इस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा, इसे नोट कर लिया सभी ने बेटा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पर सस्पेंशन। तो बेटा सस्पेंशन क्या है, इट इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो दिमाग में आपको रखना है बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन आपका कैसा होता है, मैं आपको एक थोड़े से एग्जांपल पहले देता हूं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, वाटर ले लिया बच्चों, वाटर लेने के बाद आपने उसमें सॉइल डाल दिया, क्या डाल दिया, सॉइल को डालने के बाद आपने देखा सॉइल को आप कितना भी उसे आप उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, बट जब आप उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो आप देखते हैं कि सॉइल के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, हाँ या ना, क्लियर है। या फिर जब भी आप उसमें अगर उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, तो यानी वो पार्टिकल्स हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको सस्पेंशन आपको बताया जा रहा है कुछ इसी तरीके का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका क्या है सस्पेंशन। सस्पेंशन सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which solid particles having size greater than 100 nm। तो बेटा सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि सस्पेंशन आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और जो इसके अंदर जो साइज होता है वो आपका ग्रेटर देन 100 nm होता है। कितना होता है बच्चों, ग्रेटर देन 100 nm। ग्रेटर वर्ड जरूर ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 100 nm एंड डिस्टर्ब इन ए फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है बच्चों, फ्लूइड क्या है, लिक्विड और गैस, विदाउट डिसॉल्विंग इट, ठीक है। तो आपका क्या देखा बेटा, सस्पेंशन, सस्पेंशन इज ए सॉल्यूशन, सस्पेंशन इज ए सॉल्यूशन, सस्पेंशन इज ए सॉल्यूशन, इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर
हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सस्पेंशन आपका क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल्स आपके 100 nm से ग्रेटर साइज होता है बच्चों, ठीक है। 100 nm का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर, इसे बच्चे nm को बोलते हैं बच्चों नैनोमीटर, नैनोमीटर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, तो 100 नैनोमीटर से बड़े हैं और डिस्टर्ब है किसमें, किसी भी फ्लूइड में। फ्लूइड आपका कैसा होता है बच्चों, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, विदाउट डिसॉल्विंग इट। तो बच्चों कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, चॉक इन वाटर, ठीक है, वाटर में अगर आप चॉक को मिक्स कर दीजिए, क्या वो कंप्लीटली मिक्स होगा, नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका सॉल्यूशन बनेगा दैट इज नोन एज सस्पेंशन, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट मडी वाटर, जो कीचड़ का जो पानी है, क्या कीचड़ उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, नहीं बच्चों। तो यहाँ पर भी उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें वो घूमते रहते हैं, और अगर हम कुछ देर के लिए कीचड़ के पानी को या चौक के पानी को अगर हम रखा रहने दें तो बेटा आप क्या देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और हमें वो पार्टिकल देखने को मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। एयर में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल है बच्चों सस्पेंशन का। लास्ट में मैंने आपको दिया है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों ये क्या है, ठीक है, ये एज एन मेडिसिन की तरह आपको यूज करी जाती है बेटा ये, ठीक है। ये भी एक तरह का सोल्यूशन है, एक मेडिसिन की तरह यूज करी जाती है, एसिडिटी वगैरह में यूज करते हैं बच्चों इसे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट, क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है आपका यहाँ पर, सॉल्वेंट। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर जो क्या है, ये आपका एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर के अंदर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, जिनका साइज ग्रेटर देन 100 nm होता है, ठीक है। और ये आपको विदाउट डिसॉल्विंग इट, इसमें कोई डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों सस्पेंशन, क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। तो बच्चों सभी बच्चे इसे नोट करें, व्हाट इज सस्पेंशन, ए सस्पेंशन इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए सस्पेंशन इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच the particle size greater than 100 nm are disturbed in a fluid, liquid or gas without dissolving it. Example, chalk in water, muddy water, dust particles in air, milk of magnesia. जैसे आपको यहाँ पर दिया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। तो सस्पेंशन में आपको जो दो मेन पॉइंट आपको यहां से मिल रहे हैं बच्चों, क्या है, नंबर फर्स्ट, इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड द सॉलिड पार्टिकल विच आर डिसॉल्व इन इट दे हैव द साइज ग्रेटर देन 100 nm, तो उनका जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 100 nm होता है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे नोट करिए बेटा इसे। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन क्या है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं बच्चों इसे हम, और क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, या फिर बोल सकते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ओके स्टूडेंट्स। चलिए इन्हें पढ़ते हैं बेटा, क्या है आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे सस्पेंशन इज एन, इट इज एन, सस्पेंशन किसके लिए वर्ड है बेटा, इट क्या है यहाँ पर सस्पेंशन, इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर स्टूडेंट्स। नंबर सेकंड में आप देखेंगे द सॉल्यूट पार्टिकल साइज, द सॉल्यूट पार्टिकल साइज, particle size in suspension is greater than 100 nm. 100 nm means बेटा इसमें कहां तक होता है इसका रेंज, 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए बेटा इसे,
ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा सभी इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, the particle of suspension do not pass through filter paper, तो बच्चे सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, तो थ्रू फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे ध्यान देंगे बेटा इसमें नंबर 4 पॉइंट में द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द particles of suspension can be seen easily, ठीक है बच्चों। these particles also be felt, can be felt by touch and on taking in hand, ठीक है बच्चों, नोट करते रहिए इन सब पॉइंट्स को। नंबर 5 पॉइंट में आप देखेंगे बच्चों इसमें सस्पेंशन जो पार्ट है, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, it means that on keeping a suspension undisturbed for some time, the particles will settle down, due to force of gravity, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट में हम देखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन, द सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, द सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बेटा इसे, नोट कर लीजिए बेटा इसे, ठीक है। सभी बच्चे देखें इसमें फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको समझाया, इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी इसमें कंप्लीटली ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो पार्टिकल साइज होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन ग्रेटर देन 100 nm होते हैं, ठीक है, यानी 10⁻⁷ to 10⁻⁵ रेंज होती है बच्चों इसकी, ये ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 100 nm होते हैं, इतना भी काफी है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पे इतने बड़े तो होते हैं, दिखाई देते हैं, बट फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। जब फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे तो इन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, इनको हम आसानी से हम देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स आल्सो कैन बी फेल्ट बाय द टच एंड ऑन टेकिंग इन हैंड, जैसे कि आपने क्या किया, सॉइल को आपने वाटर में मिला दिया, फिर आपने उसमें हाथ डाला तो सॉइल हाथ पे आती है बच्चों, हाँ या ना, तो जो सॉइल के जो पार्टिकल है उसको आप फील कर पा रहे हो, उसको आप टच कर पा रहे हो, तो बेटा ये किसमें होता है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन, क्या बोलते हैं बच्चों, सस्पेंशन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल सॉल्यूशन है। क्यों बेटा अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इट मींस दैट ऑन कीपिंग ए सस्पेंशन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम द पार्टिकल्स विल बी सेटल डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो आपके पार्टिकल्स है उनका जो साइज है काफी बड़ा है बच्चों, ठीक है, ग्रेटर देन 100 nm है, ठीक है, तो वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर सस्पेंशन हमारे अनस्टेबल हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको बताया बेटा मैंने, सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट,
जो सस्पेंशन होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 nm एंड दैट कैन बी सीन इजीली, वो इजीली आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए बेटा रिवाइज करिए एक बार और। नंबर फर्स्ट पॉइंट में इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट में द सॉल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन ग्रेटर देन 100 nm। नंबर थर्ड पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है पॉइंट, फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है बच्चों। नंबर फोर द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली, दो इसके जो पार्टिकल हैं उनको आसानी से देख सकते हैं हम। दीज पार्टिकल ऑल्सो कैन बी फेल्ट बाय टच ऑन हीटिंग इन हैंड। नेक्स्ट पॉइंट में आपको द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, इट मींस दैट ऑन कीपिंग ए सस्पेंशन इज अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द लास्ट पॉइंट इज द सस्पेंशन इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो बेटा सभी को पता चला कि ये पॉइंट्स आपने सभी बच्चों ने रिवाइज किए। क्या आपने देखा बेटा सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इजी हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कोलॉइड्स। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? कोलॉइड्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कोलॉइड क्या है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो सीखा वो था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था, मास परसेंटेज के बारे में बताया। सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है बेटे, सॉल्युबिलिटी को हमने पढ़ा। फिर हमने क्या फैक्टर्स पढ़े हमने कि सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड है। फिर हमने देखा बच्चों कि फैक्टर्स पढ़ने के बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जाने के बाद हमने मास परसेंटेज पढ़ा। फिर आज की क्लास में हमने देखा बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। फिर स्ट्रेंथ आपको बताया बच्चों मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आज आपको समझाया सस्पेंशंस। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको आज मैंने कराए। तो बेटा जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए और जो ये पॉइंट मैंने आपको कराए सभी बच्चे आप कॉपी में नोट करिए, साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक को रीड करिए। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आई थिंक जितना अगर ये आपने सारा कंटेंट आपने अगर अपनी कॉपी में लिख लिया है, ठीक है, और आपने जो है ये न्यूमेरिकल्स मैंने दिए उनकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, एंड सेकंड वन आपने एनसीईआरटी भी रीड कर ली, तो उसके बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर आपसे विराम लेना चाहेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे कॉलॉइड टॉपिक के साथ में। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे कॉपी में नोट करिए। थैंक यू सो मच।